কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর প্রণব হাওলাদার মহাশয়, উপস্থিত আছেন রাজ্য সভাপতি মাননীয় মনোজ হাওলাদার মহাশয়, এছাড়াও এই জোনের 3 জন কোঅর্ডিনেটর এবং বিভিন্ন জেলার আগত জেলা সভাপতি, বিধানসভা সভাপতি, সেক্টর কমিটির সভাপতি, বুথ কমিটির সভাপতি এবং বিভিন্ন পদাধিকারী প্রত্যেককে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে দু একটি কথা বলবো। সাথে আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি ভারতবর্ষের স্বাধীন ভারতে 85% বহুজন সমাজ আমরা স্বাধীনতার স্বাদ এখনো পাইনি। সেই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ স্বাদ পেতে এবং আমরা স্বাধীনতার পর বাবা সাহেবের সংবিধানের মধ্য দিয়ে যে সুযোগ সুবিধা আমরা পেয়ে আসছি এবং সেই সুযোগ সুবিধা আস্তে আস্তে আমরা হারাতে বসেছি এবং আগামী দিনে আমাদের উত্তরসূরি এবং আগামী প্রজন্মকে একটা সুন্দর সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ উপহার দেওয়ার জন্য আজকে আমরা বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আন্দোলনকে বাবা সাহেব এবং মাননীয় কাশীরামজি এবং আমাদের মহাপুরুষদের যে লক্ষ্যমাত্রা আমাদের ধার্য করে দিয়েছেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সব ধরনের মুক্তি পেতে পারি, সব ধরনের অধিকার পেতে পারি, সেই দিকে যাওয়ার জন্য, সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার জন্য আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং সেটা সাংগঠনিক মাধ্যমে আমাদের করতে হবে। আমাদের রাজ্য সভাপতি মহাশয় বিস্তারিতভাবে আপনাদের সামনে আলোচনা করেছেন। আমি রাজ্য সহসভাপতি হিসাবে আমিও আপনাদের সঙ্গে সর্বদা থাকার চেষ্টা করব। আপনারা যখনই বলবেন তখনই আমি থাকবো। এছাড়াও আপনাদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রেখে আমরা আমাদের এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এছাড়াও আপনারা শুনতে পেয়েছেন আগামী মাসে 6 জুলাই আমাদের পার্টির সারাদিন ব্যাপী একটি কর্মী ক্লাস আছে এবং সেই কর্মী ক্লাসটি সম্পূর্ণভাবে আমাদের প্রশিক্ষণ দেবেন মাননীয় ডক্টর লালজি নীলকণ্ঠ এবং জুলাইয়ের 20 তারিখ বামছে সমস্ত রাজ্যের যে বামছেদের নিয়ে একটা সারাদিন ব্যাপী ক্যাডার ক্যাম্প হবে, প্রশিক্ষণ শিবির হবে। সে প্রশিক্ষণ শিবিরও একমাত্র ডক্টর লালজি নীলকণ্ঠজি আমাদের সেই প্রশিক্ষণ দেবেন শুধুমাত্র বামছেদের জন্য। এখনো আমরা জায়গাটা নির্ধারণ করতে পারিনি। অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি আপনাদের জানাবো। অনুরোধ করব এই দুটি অনুষ্ঠানে, মানে এই দুটি কর্মী সম্মেলনে আপনারা অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। আমরা যদি প্রকৃত ক্যাডার না হতে পারি, শিক্ষিত রাজনৈতিক শিক্ষিত বহুজন সমাজ পার্টির শিক্ষিত ক্যাডার না হতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের এই মুভমেন্ট এগিয়ে নিতে যেতে পারবো না। এই আশা, এই আবেদন রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করব। আমাদের দিশা নির্দেশ দিচ্ছেন আয়রন লেডি ব্যাগ কুমারী মায়াবতীকে। ওনার আদর্শ, ওনার নীতি, ওনার যে আমাদের যে সমস্ত কাজ দেয় हमारे साथियों, आज नॉर्थ बंगाल के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर आयोजित नॉर्थ बंगाल जोन के तत्वावधान में इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पे स्टेट के प्रेसिडेंट सम्माननीय मनोज हावलादार जी, विशिष्ट अतिथि के तौर पे उपस्थित विभिन्न से चल के आए कमला भाषी
सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रणव हरदर जी और बंगाल स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट शुभ सिद्धर जी, इस जोन जिसमें 8 जिले सम्मिलित हैं, ऐसे जोन के जोन इंचार्ज सम्माननीय अनिल राय जी, सम्माननीय शांति कुमार सरकार जी, सम्माननीय सनल साधु जी, मीटिंग में हमारे प्रेसिडेंट जी ने आप लोगों का कमेटी का रिव्यू किया, समीक्षा लिया। इस समीक्षा में हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट कूच बिहार के पूर्ण मोहन राय जी खड़े हो जाएंगे, बार पहचान पूर्ण मोहन राय जी, जलपाईगुड़ी के सम्मानीय गणेश मंडल जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गणेश मंडल जी, मालदा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट नीतीश मंडल जी, दक्षिण दिनाजपुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गोविंद हंसदा जी और उत्तर दिनाजपुर के प्रेसिडेंट सफल कुमार दास जी। सम्मानित साथियों, आपकी कमेटी का रिव्यू हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, अच्छा खान बता रहे प्रदीप राय जी, अच्छा ठीक है, मैं बांग्ला कोशिश कर रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन करने का। प्रदीप कुमार राय जी एक डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट नहीं है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट 6 हो गए, 2 नहीं है। हाँ, 2 नहीं। साथियों, पहली बार उत्तरी बंगाल में मेरा आगमन हुआ है, मैं आया हूँ। ऐसे में मेरे लिए तो आपसे मैं परिचित हो जाऊं, आप मेरे से परिचित हो जाएं, एक दूसरे को पहचान जाएं, समझ लें आप लोग अभी तक कैसे करते आए, क्या क्या किया है आप लोगों ने, आगे आपका मन कैसा बनेगा, इस बात की समझ विकसित हो। इसके लिए आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लगातार आप लोगों के बीच में रहूंगा और मेरा ऐसा मानना है कि अभी कोई 9-10 महीने 2026 असेंबली इलेक्शन के हैं, तो ऐसे में बहन जी ने अगर भेजा है तो मुझे लगता है कि बहन जी ने इस इलेक्शन में बेहतर हो सके, चुनाव में बेहतर हो सके, कुछ नई रणनीति हम लोग बना सकें, कुछ नए आंदोलन हम लोग चला सकें, बंगाल में जो अब तक नहीं हो पाया है ऐसा कुछ हम लोग कर सके। इसी बात के मद्देनजर माननीय बहन जी ने इधर मुझे भेजा है। ऐसे आपके प्रेसिडेंट तो फुल टाइमर हैं, मैं भी फुल टाइमर हूं, हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। हम बिना बाल बच्चे वाले, बिना परिवार वाले, तो हमारे पास बेघर टाइप के लोग, हमारा घर अगर कोई है तो ये बहुजन समाज है। आप सब लोग ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। ऐसी भावना के साथ मन बना के बहुजन मूवमेंट का काम हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हमारा जीवन बेकार न जाए, आपका भी जीवन बेकार न जाए। कुछ पुराने साथी जिन्होंने साहब का साथ दिया होगा, साहब के साथ, कांसीराम साहब के साथ चले होंगे, कुछ लोग इस दुनिया में अब नहीं होंगे, जा चुके होंगे, कुछ बूढ़े हो गए होंगे,
तो किसी का 10 साल चला गया, किसी का 20 साल चला गया, किसी का 30 साल चला गया। जीवन तो जा रहा है, ये लाइफ तो धीरे धीरे पास आउट हो रही है, जा रही है। तो जब इस काम में हम लोग लगे हैं तो हमारे ही जीवन में कुछ रिजल्ट आना चाहिए, कुछ बेहतर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा जीवन सार्थक हुआ, अर्थपूर्ण हुआ, और यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारा जीवन बेकार हो गया। तो हमें अपना जीवन बेकार नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। हम लोगों में से किसी ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं देखा, नहीं दर्शन किया, लेकिन हम में से अधिकांश ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सच्चे सपूत, सच्चे वारिस माननीय कांशीराम साहब को हम में से अधिकांश ने देखा है, सुना है, और कुछ लोगों ने उनके साथ काम भी किया है। उन माननीय कांशीराम साहब ने इस पूरे बहुजन आंदोलन में पूरे देश में बहुत लोग उनके फॉलोअर हुए, अनुयायी हुए। लोगों ने अपना जीवन लगाया, बहुत लोगों ने अपना घर बार छोड़ा, बहुत लोगों ने परिवार नहीं बसाया। इन सारे लोगों में हमारे समाज की एक लड़की, एक महिला, वो सबसे तेज तर्रार निकली। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। ऐसी नेता, ऐसी लीडर जो हमारे समाज की एक बहन बेटी है, आज हमारे बीच में है, और उनकी भी आयु के 69 ईयर्स निकल चुके हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 2001 में माननीय कांशीराम साहब ने लखनऊ के माता रमाबाई अम्बेडकर मैदान में लगभग 20 लाख लोगों के बीच में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को माननीय कांशीराम साहब ने यह कहा कि मेरे बहुजन मूवमेंट का उत्तराधिकारी, अपना सक्सेसर मैं मायावती को घोषित करता हूं। तो हमारी बहन जी माननीय कांशीराम साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, जिनको इस बहुजन मूवमेंट की बागडोर साहब कांशीराम ने दिया। तो सम्मानित साथियों, मेरा यह कहना है कि बाबा साहेब को तो नहीं देखा, कांशीराम साहेब को देखा, और हम में से कुछ लोगों को साथ में काम करने को मिला, लेकिन आज उनकी शिष्या बहन कुमारी मायावती जी रात दिन संघर्ष कर रही है। हमारी बेहतरी के लिए, हमें उठाने के लिए रात दिन संघर्ष कर रही हैं। और ये जो उनका संघर्ष है, ये संतों, गुरुओं, महापुरुषों का आंदोलन, चाहे वो भगवान तथागत गौतम बुद्ध हो, चाहे वो संत कबीर, संत रविदास हो, चाहे वो संत घासीदास हो, चाहे संत तुकाराम हो, चाहे गुरुचंद हरिचंद्र ठाकुर हो, चाहे छोटू राम जाट हो, चाहे वो साहू जी महाराज हो, ज्योतिबा राव फूले हो, और बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो। ये एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की, अपने जीवन की आहुति दे करके हमारी बेहतरी के लिए, हमें उठाने के लिए, हमें मनुष्य का जीवन देने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दिया, अपना सर्वस्व लगाया। ऐसे बहुजन मूवमेंट, ऐसे मानवतावादी आंदोलन के उत्तराधिकारी माननीय बहन जी आज हमारे बीच में लगातार संघर्ष कर रही हैं। तो बंगाल प्रदेश के वासियों, मेरा आप लोगों से कहना है, आज बहन जी हैं, हमारे पास लीडर हैं, और साहब कांशीराम ने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी भी है हमारे पास। और कैसे पॉलिटिकल पार्टी है? ये पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी के जैसी नहीं है। मेरे कहने का मतलब, टीएमसी जो है यहाँ पे वो क्षेत्रीय पार्टी है, स्टेट लेवल की पार्टी है। आप अगर पश्चिमी बंगाल छोड़ करके आप उड़ीसा में जाएंगे तो टीएमसी नहीं पाएंगे आप वहां पे। आप बिहार जाएंगे तो टीएमसी नहीं मिलेगी, झारखंड में टीएमसी नहीं मिलेगी। टीएमसी कहाँ मिलेगी? वो सिर्फ आपके बंगाल में मिलेगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो अचीवमेंट मिला है, हमें जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, हमें जो महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने दिया है, ये जो हमें अधिकार दिया है, ये हमें अधिकार नेशनल लेवल पर मिला है। ये अधिकार हमें किसी
हम जिसके तहत आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो शक्तियां हमें मिली हैं, कई हजार वर्षों के लाचार गुलाम लोगों को, हम लोगों को जो ये शक्तियां मिली हैं, ये शक्तियां हमें राष्ट्रीय स्तर पर मिली हैं, देश के संविधान सभा में मिली हैं। आज भी अगर इनको संरक्षित करना है तो देश के पार्लियामेंट में संरक्षित हो सकती हैं। कुछ ताकतें तो हमारी असेंबली लेवल पे विधानसभा भवन में हो सकती हैं, लेकिन हमसे जुड़ी हुई अधिकांश बातें वो सब देश की राजधानी दिल्ली में जो सदन है, पार्लियामेंट है, वहां पे हमारे अधिकारों की चर्चा होती है, वहां अधिकार बनाए जाते हैं, वहां अधिकार डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। तो सम्मानित साथियों, यदि राष्ट्र के स्तर पे हमारा आंदोलन नहीं होगा, देश के स्तर पे हमारा आंदोलन नहीं होगा, तो हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी भावना आप लोगों के मन में उठती हो कि टीएमसी वाले तो बंगाली भाषी हैं, यही हमारा सारा काम हो जाएगा, तो सम्मानित साथियों, ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जो महाराष्ट्र में पैदा हुए, उन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को उस जमाने के लोगों ने, यहाँ के चांडाल भाई लोगों ने, नमोशूद्र समाज के लोगों ने, इधर प्राणनाथ महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने उनको बुलाया। आपसे बेहतर इसे कौन जान सकता है, और बुला करके बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने एमएलए तैयार किए और बाबा साहेब को कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली में भेजा, संविधान सभा में भेजा। तो बाबा साहेब महाराष्ट्र में थे, वो महाराष्ट्र का आंदोलन कर लेते, जोगेंद्रनाथ मंडल बंगाल में थे, तो बंगाल का आंदोलन कर लेते। ये देश के स्तर पे संविधान बनाने की क्या जरूरत थी? आज न देश होता, न देश का संविधान होता, और न ही आपके हमारे अधिकार होते। हमारी लड़ाई राष्ट्र के लेवल पर लड़ी जाती है, हमारे अधिकार राष्ट्र के लेवल पर, देश के लेवल पर हमारे अधिकार सुरक्षित होते हैं, बनाए जाते हैं। आज ये बहुजन समाज पार्टी, ये बहुजन मूवमेंट की पार्टी, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों के विचारधारा की पार्टी, ये टीएमसी नहीं है, ये मात्र बंगाल में नहीं है, मात्र कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। तो इस मामले में मेरा यह कहना है कि इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी इस समय केंद्र में जिसकी सरकार है वो बीजेपी है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसकी सरकारें सेंट्रल और स्टेट में रही हैं वो कांग्रेस पार्टी है, तीसरी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी है, जो आपकी पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है। सम्मानित साथियों, ये मेरा 11वां स्टेट है, बहन जी ने 11 राज्यों में अब तक भेज चुकी। साथियों, बंधुओं, हम लोग चाहे साउथ में चले जाएं, चाहे हम लोग उड़ीसा में चले जाएं, पूरे देश में जब जाते हैं ऐसे कार्यालय दिखता है, ऐसे बिल्डिंग दिखती है, ऐसे हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिखते हैं। भाषा और लिपि उनकी अलग हो सकती है, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट में, आंदोलन में ये जो तैयारी देशव्यापी है, इतना बड़ा काम उन मसीहा मानकर कांसीराम जी ने किया है, और इस काम को बहन कुमारी मायावती जी इसको बढ़ाने में लगी हुई हैं, हमारा आपका कल्याण करने में लगी हुई है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ऐसा कहना है कि 2026 में इलेक्शन आने वाला है। साथियों, ये दुनिया परिवर्तनशील है, बहुत सारे ऐसे काम जो पहले नहीं हुए थे वो अब हुए हैं, प्राचीन इतिहास में जो नहीं हुए थे वो अब हुए हैं। जैसे कि हमने कहा कि हजारों वर्ष की गुलामी से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें आजादी करवाई, निजात दिलाया, तो ये काम हुआ ना। तो ये नहीं मान लेना है कि अभी तक वेस्ट बंगाल में बीएसपी नहीं बढ़ी है, यहाँ हमारे एमएलए नहीं जीते हैं तो नहीं जीतेंगे। जो पहले नहीं हुआ वो अब हो सकता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये परिवर्तन हो सकता है अगर हम लोगों ने सटीक अंदाज में, सही अंदाज में अपनी तैयारी किया, तो 2026 में हम लोग वो कर सकते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है। साथियों, ये बहुजन मूवमेंट है, ये जो बहुजन शब्द है, आजकल बहुत सारे बहुजन हो गए हैं। इधर मुझे आपके पश्चिमी बंगाल में तो नहीं मालूम, लेकिन मैं बिहार में लंबे अरसे से प्रभारी रहा हूँ, वहां पर एक तेजस्वी यादव हैं, वो भी बहुजन बोलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, वो भी बहुजन बोलते रहते हैं। ये क्या बात हो गई भाई? पहले बहुजन बोलने पर वो हमारी जुबान पकड़ते थे, मुंह पकड़ते थे, बहुजन बोलने पर हमारे लोगों
अलग बोलने लगे। ये आपकी जीत है, ये उनकी हार है। जब कभी कोई जय भीम बोलता था तो लोग हंसते थे, कहते थे अरे इनका भीम क्या भगवान हो गया, क्या इनका भीम राम हो गया। बोलने नहीं देते थे, उपहास उड़ाते थे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री वो मंच पर खड़े होकर के कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी हूँ, और वो भी जय भीम करते हैं। ये आपकी जीत है, आपके आंदोलन की, आपके मूवमेंट की जीत है। इस देश में कांग्रेस पार्टी के लोग, जिनके पूर्वजों ने, जिन कांग्रेस पार्टी के बनाने वालों ने जीवन पर्यंत बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जब आपके लिए अधिकार बना रहे थे, कानून बना रहे थे, तो पग पग पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने का काम किया। आज उन्हीं के नाती पोता श्री राहुल गांधी और श्री प्रियंका वाड्रा, वो दोनों नीला नीला पहन करके, नीला नीला साड़ी पहन करके, नीला नीला सूट पहन करके, और उधर पार्लियामेंट में जाकर के घूमते हैं और जोर जोर से जय भीम जय भीम जय भीम बोलते हैं। तो हमारे नौजवान जो एक नारा लगाते हैं, उसको राहुल गांधी प्रियंका गांधी लगाते हैं, कहते हैं जय 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 भीम जय भीम। आपकी जीत है, ये उनकी हार है। हमारी फिलोसफी आगे बढ़ी है, हमारा दर्शन आगे बढ़ा है, हमारा भाषण आगे बढ़ा है, हमारा नारा आगे बढ़ा है। हमें कॉपी कर रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं। इसका मतलब हमारी जीत हुई है, उनकी हार हुई है। अब हुआ नहीं है तो रिजल्ट में नहीं चेंज हुआ है। अरे जब विचारधारा हमारी आगे बढ़ी है, जीत गई है, हमें अनुसरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी आएगा और हम और आगे बढ़ेंगे। और जो सपना था बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का, कौन सा सपना बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का, वो जो उंगली का इशारा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं, क्या उंगली का इशारा करते हैं? कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। अगर इमेंसिपेशन चाहते हो, दुख और तकलीफ से मुक्ति चाहते हो, तो सत्ता के मंदिर पे कब्जा कर लो, पॉलिटिकल पावर अचीव कर लो। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे आप अपनी तरक्की के बंद ताले खोल सकते हैं। पॉलिटिकल पावर इन मास्टर की व्हिच कैन ओपन ईच एंड एवरी डोर फॉर योर प्रोग्रेस। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। सम्मानित साथियों, बांग्ला भाषी लोगों, मेरा आप लोगों से कहना है, बंगाल के लोगों, महापुरुषों की धरती हुई है, ये बहुत समृद्ध कल्चर है, बहुत सारे साहित्य और लेख किताबें लिखी गई हैं। बंगाल के लोगों, मेरा आप लोगों से कहना है, ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत, जो जीवन भर संघर्ष किया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उनकी बदौलत एससी और एसटी तो लिस्ट बनी, एससी और एसटी की तो सूची बनी। उत्तर प्रदेश में माननीय कांसी राम जी ने अलग जगाया, तो क्या माननीय कांसी राम साहब बंगाल नहीं आए? क्या माननीय कांसी राम साहब उत्तरी बंगाल में नहीं आए? क्या आए कि नहीं आए? बहुत बार आए। वो कांसी राम साहब तो पंजाब में पैदा हुए, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में काम किया था, जैसे उन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश में काम किया था, देश का कोई भी प्रांत छूटा नहीं है जहां वो मसीहा के चरणों में पड़े हों, जहां वो गए ना हो। उन कांसी राम साहब ने इस बंगाल में भी काम किया है, यहाँ भी रैली किया है, यहाँ भी संगठन बनाया है, यहाँ भी उन्होंने अम्बेडकरवाद की अलग जगाई है। साथियों, आखिर क्या ऐसा रहा, क्या हुआ? इधर अभी तक आप लोग जीते नहीं, और उत्तर प्रदेश में जहां पर 21-22% के लगभग एससी एसटी समाज है, जिसे दलित समाज कहते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, उसकी आबादी कोई 22% के आसपास उत्तर प्रदेश में है। आपके यहाँ कितनी है? आपके यहाँ 30% से अधिक है। आप 10% ज्यादा हो, आप 10% ज्यादा हो। आप काहे वामपंथ के चक्कर में पड़े रहे? आप काहे कांग्रेस के चक्कर में पड़े रहे? और अभी आप बीजेपी के चक्कर में पड़ रहे हो। काहे आप तृणमूल कांग्रेस के चक्कर में पड़े रहे? आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के चक्कर में क्यों नहीं पड़े? आप जोगेंद्र नाथ मंडल के चक्कर में क्यों नहीं पड़े? आप हरिचंद गुरुचंद ठाकुर की विचारधारा के चक्कर में क्यों नहीं पड़े? अपने जमीन को क्यों नहीं जगाया आपने? जब यूपी में 20-22% एससी एसटी समाज वो अपनी तैयारी करके आधार बना
करके अपने साथ ओबीसी को जोड़ करके, मुस्लिम को जोड़ करके और 4 बार यूपी में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बना सकता है। बंगाल प्रदेश के वासियों, आपकी आबादी 30% से अधिक है, आप अभी तक अपना क्यों नहीं जितवा पाए? आप क्यों नहीं जितवा पाए? तो ये जो बहुजन मूवमेंट है, ये हमारी जड़ें जमी हुई है। ये बहुजन शब्द कहां से आया ये मैं बता रहा था। ये बहुजन शब्द कहां से आया मैं ये बता रहा था, जिसको आज विभिन्न पार्टियों के लोग हमसे कॉपी करके और बहुजन बहुजन बोल रहे हैं, पालन करते हैं वर्णवाद जातिवाद का, शोषण करते हैं, हमारे एससी एसटी समाज का आतंक मचाते हैं और हमारा भाषण चुराए हुए हैं और ये बहुजन बहुजन बोलते रहते हैं, ये जय भीम बोलते रहते हैं। ऐसे में मेरा ये कहना है कि ये वाणी जो बहुजन है, ये सबसे पहले इस भारत भूमि पर भगवान तथागत गौतम बुद्ध के मुंह से उच्चारित हुई। ये जो बहुजन शब्द है, इसका उच्चारण किसने किया? इसका उच्चारण सबसे पहले भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने किया। भगवान गौतम बुद्ध ने जब उनके 60 अनुयायी हो गए, 60 उनके फॉलोअर हो गए, तो वाराणसी की धरती पर उन 60 अनुयायियों से भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, शरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। शरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थाय हिताय लोकानुकंपाय देव मनुष्यानंद द्वयमेव आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं ब्रह्मचर्य प्रकाशे। भगवान बुद्ध ने अपने 60 लोगों से कहा कि मेरे अनुयायियों, चरत भिक्षवे चारिकं, मेरे भिक्षुओं, चारिका करते रहो, चलते रहो, विचरण करते रहो। कोई दो मेरे अनुयायी एक रास्ते से मत जाओ, अलग अलग रास्ते से जाओ, अलग अलग मार्ग से जाओ। जाओ इस धार्मिक विचारधारा की स्थापना करो। काहे के लिए करो? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए इस विचारधारा की स्थापना करो। समाज साथियों, हमारी पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी ने, जिन्होंने पूरे देश को अम्बेडकरवाद से परिचित करवाया, उन माननीय कांशीराम जी ने उस बहुजन शब्द को लिया और उन्होंने बहुजन मूवमेंट चलाया। उन्होंने बहुजन मूवमेंट चलाया। ये बहुजन समाज पार्टी तो उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बनाई, लेकिन ये बीएसपी बनाने से पहले माननीय कांशीराम जी ने बाम से बनाने की प्रक्रिया में इस बहुजन शब्द को उन्होंने स्वीकारा और बहुजन शब्द को स्थापित किया। वैसे उन्होंने पहले एक न्यूज़पेपर चलाया था, मैगजीन चलाई थी, ऑप्रेस्ड इंडियन करके। ऑप्रेस्ड इंडियन के बाद कांशीराम जी ने इंग्लिश में बहुजन टाइम्स बनाया चलाया। बहुजन टाइम्स के बाद बहुजन संदेश बनाया, बहुजन नायक बनाया, बहुजन संगठन बनाया। ऐसे बहुजन शब्द को उन्होंने अडॉप्ट किया और ये बहुजन जब चला रहे थे कांशीराम साहब बहुजन बहुजन, तो माननीय कांशीराम साहब क्या कहना था? अपनी जाति के बैरियर में बाड़े में बंद रहोगे तो अल्पजन कहलाओगे। अपने अपने जाति रूपी बैरियर में बाड़े में बंद रहोगे तो अल्पजन कहलाओगे। और डेमोक्रेसी में अल्पजन की कोई औकात नहीं होती है। जो संख्या में कम है, अलग पड़ा हुआ है, उसकी कोई औकात नहीं बनती है। संख्या में जो ज्यादा है, भारी है, वही अपनी औकात डेमोक्रेसी में बना पाता है। ये वोट बैंक की ताकत जिसकी ज्यादा होती है, वो अपनी औकात बना पाता है। तो कांशीराम साहब ने कहा कि अगर अपने अपने कास्ट के बैरियर में पड़े रहोगे, जाति के बाड़े में बंद रहोगे तो अल्पजन कहलाओगे। जाति के बाड़े को तोड़ दोगे, निकल के बाहर आ जाओगे, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, एक मंच पर आ जाओगे, एक समाज का निर्माण करोगे, तो फिर अल्पजन नहीं रह जाओगे, फिर आप बहुजन बन जाओगे। तो कांशीराम जी ने कहा कि मुझे अल्पजन लोगों को इकट्ठा करके बहुजन समाज का निर्माण करना है। माननीय कांशीराम जी ने ये बहुजन समाज बनाने में, अलग अलग जाति को जोड़ने में उनकी जिंदगी के सम्मानित साथियों कोई 27-28 वर्ष लग गए। 27-28 वर्षों तक की लाइफ लगाने के बाद तब माननीय कांशीराम जी ने 1984 में जब बहुजन समाज कुछ बन गया, तो उन्होंने कहा इस बहुजन समाज की इस देश में अगर सत्ता तक जाना है, बाबा साहेब का सपना पूरा करना है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी भी होनी चाहिए। ये बहुजन समाज जो बना है, इस बहुजन समाज की एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। फिर
बहुजन समाज की पार्टी का क्या नाम होगा? इसका नाम होगा बहुजन समाज पार्टी। साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी की स्थापना बहुजन के सिद्धांत पर, भगवान गौतम बुद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर ये महत्वाकांक्षी आदमी ने किया। मैंने ये पार्टी का हिस्ट्री आप लोगों को बताया है, कुछ बात से अपना इतिहास बताया है। सम्मानित साथियों, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग ये सारा भाषण जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये भाषण आप लोग लगातार देते हैं कि नहीं देते हैं। अब मैं आपके बीच में आया हूँ, माननीय बहन जी ने अपना नुमाइंदा इधर मुझे बना के भेजा है। आपके बीच में भाईचारा कायम करके मैं आपकी भाषा बोली को सीखने का प्रयास करूंगा। आप मुझे कुछ सिखाएंगे और जो बहन जी ने हमें सिखाया है, अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको सिखाने का काम करूंगा। लेकिन ये बहुजन मूवमेंट, ये आंदोलन जो अभी तक फलीभूत नहीं हुआ है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि इतनी तैयारी हम लोग करें। हमारे पास ये 9-10 महीने का जो समय है कि हम लोग 2026 में हम पूरे देश को बता सकें, हम बंगाल प्रदेश को बता सकें, हम अपने लीडर माननीय बहन जी को बता सकें कि बहन जी, बंगाल में हम लोग जाग गए हैं और ये हमने रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया है, हमने वोट आप परसेंटेज बढ़ाया है, हमने अपना विधायक भी जिताया है और बंगाल प्रदेश भी उस दिशा में आगे बढ़ेगा और अपनी सरकार बनाएगा। सम्मानित साथियों, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बहन जी की बात करना चाहूंगा। हमारी लीडर माननीय बहन जी ने अपनी किताब में लिखा है, पहली किताब लिखी उन्होंने बहुजन समाज उसकी राजनीति। उस किताब में बहन जी ने लिखा है, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत इकट्ठी कर दी जाए तो ताकत से शक्ति का निर्माण होता है और जब शक्ति का निर्माण हो जाता है तो सत्ता की प्राप्ति होती है। इसलिए मैंने यह इतिहास बताया है। और फिर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बात आपको याद दिलाना चाहेंगे। बाबा साहेब कहते हैं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकता है, जो इतिहास नहीं जानता है वो शासक नहीं बन सकता है। इसलिए सम्मानित साथियों, यदि शासक बनना है तो हमको जो घटनाएं घटी हैं इतिहास में, उसको आप लोगों को स्मरण रखना होगा, उसको बताना होगा। इसलिए SC/ST समाज के लोगों, नमस्कार समाज के लोगों, राजवंशी समाज के लोगों, मेरा आप लोगों से कहना है, आपकी जाति को, कास्ट को मैं इधर समझने और जानने का, नोटिस में लेने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहीं लिखा है, भी वे क्षत्रियास, हम लोग क्षत्रिय थे। क्षत्रिय माने बड़वाल वाला क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत वाला क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय माने शासक। हम लोग यहाँ के शासक रहे, राजा रहे हैं, उसके लक्षण मौजूद होंगे। आपके बंगाल में भी तमाम SC/ST OBC की जातियों में राजा के लक्षण मौजूद होंगे, कहीं न कहीं उनके किले मौजूद होंगे, कहीं न कहीं वो शासक रहे हैं मौजूद होंगे। मैं तो आपको पाटलिपुत्र की गद्दी, जो पटना राजधानी बनी प्राचीन इतिहास में, जहां पर सम्राट अशोक जैसे लोगों ने शासन किया, आपके म्यांमार से लेकर कजाकिस्तान, अफगानिस्तान तक, श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक इतना बड़ा देश था हमारा, जिसको जम्बूद्वीप कहते थे। इतने बड़े देश पर महान सम्राट अशोक ने शासन किया था। उस पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठ करके 1000 से अधिक वर्षों तक हम लोगों का राजपाट रहा है। हमारी हुकूमतें रही हैं प्राचीन इतिहास में, प्राचीन भारत में। उनका मैं नाम लेना चाहूंगा और फिर आपसे मैं सवाल करूंगा कि कोई हिस्ट्री का जानकार मिले तो उनसे पूछिए कि इधर को जिसको मनोवाद, ब्राह्मणवाद कहते हैं, जिन्होंने 4 वर्ण बनाया है, 4 वर्ण बना के जिन्होंने हमें तोड़ा है, गुलाम बनाया है, हमारा शिक्षा छीना, हमारा अधिकार छीना, हमारा जमीन जायदाद छीना, हमें जानवर के जैसा बना दिया। कौन सा 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिन्होंने हमें शूद्र बनाया, अति शूद्र बनाया, जिन्होंने हमें अछूत बनाया, जिन्होंने हमें पशु के जैसा बनाया, मैं उन लोगों से कहूंगा कि उनके कोई हिस्ट्री के जानकार होंगे तो ये मेरा प्रश्न उनसे कीजिए
मिलेगा। कौन सा प्रश्न? उस पाटलिपुत्र की गद्दी पर बड़े बड़े राजा और सम्राट बैठे। कौन से राजा और सम्राट बैठे? सम्राट बिंबिसार हुए, सम्राट अजातशत्रु हुए, सम्राट कालाशोक हुए, सम्राट शिशुनाग हुए, सम्राट बिंदुसार हुए, सम्राट चंद्रगुप्त हुए, महान सम्राट अशोक हुए। सम्मानित साथियों, ये जिन राजाओं को मैंने नाम लिया कालांतर में भी हुए। सम्राट मिलिंद हुए, सम्राट कनिष्क हुए, सम्राट विक्रमादित्य हुए, सम्राट हर्षवर्धन हुए, सम्राट शिलादित्य हुए। इन राजाओं की जो 4 कैटेगरी मैंने कही है, जो बनाया है हमें गुलाम बनाए रखने के लिए। एक बार मुझे किसी विद्वान से, रिसर्चर से पूछना कि 4 वर्णों में कहाँ फिट करोगे इन्हें। ये मैंने जिन राजाओं का नाम लिया है, इनको 4 वर्णों में कहाँ बताओगे? क्या इनको ब्राह्मण बताओगे? ना, ब्राह्मण वर्ण में नहीं थे ये लोग। तथाकथित जो राजपूत क्षत्रिय है नॉर्थ इंडिया का, क्या उसमें बताओगे? उसमें भी नहीं मिलेगा वो। और वैश्य जो होता है, जो बनिया होता है, व्यापार करता है मारवाड़ी बनिया जैसे, वो भी राजा नहीं बनता है, खाली व्यवसाय करता है। ये राजा कहाँ मिलेंगे आपको? चौथा वर्ण जो सबसे नीचे बनाया, शूद्र मिलेगा, अति शूद्र मिलेगा, अछूत और सछूत मिलेगा। मेरे कहने का तात्पर्य है, बहुजन समाज के लोगों ने आप लोगों से कहना है, हम इस देश के हुकूमत करने वाले थे, हम इस देश के राजा थे, हम इस देश के सम्राट थे। हमारा धन धरती छीन लिया, हमारा जमीन जायदाद छीन लिया, हमारी हुकूमत छीन ली और हमको अछूत बना दिया, हमें अनटचेबल बना दिया, हमें गुलाम बना दिया। ये हजारों वर्षों की गुलामी से निजात पाना चाहते हो तो माननीय बहन जी को अपना नेता मानना पड़ेगा। बहन कुमारी मायावती जी को अपना अगुआ मानना पड़ेगा। आपको छोड़ना पड़ेगा ममता बनर्जी को, आपको छोड़ना पड़ेगा राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को, आपको छोड़ना पड़ेगा उस छलिया को, नरेंद्र मोदी अमित शाह को। ये दोनों जो रंगा बिल्ला है, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। अपनी बहन जी को नेता मान के देश के स्तर पर, प्रांत के स्तर पे नहीं, हमको संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने प्रारंभ में बताया कि जब हमारी बोली लोग बोल रहे हैं, हमारा भाषण लोग दे रहे हैं, हमारा बहुजन बहुजन चल रहा है, हमारे बाबा साहेब चल रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को जीवन भर एक आदमी ने रुकावट पैदा किया, उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जो आधी पहनते थे और आधी ओढ़ते थे। पूरे देश में कोई खबर नहीं मिलेगी आपको कि मोहनदास करमचंद गांधी की कोई प्रतिमा लगाता हो, कोई स्टैचू स्थापित करता हो, पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा कोई जिला नहीं है पूरे देश में जहां पे आपको खबर न मिलती हो कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जा रही है। लोग तो जिंदे वाले को मारते हैं, बाबा साहेब को गए हुए इतने बरस हो गए, आज 69 साल हो गए, 70 साल हो गए। हमारे मरे हुए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे मरे हुए नहीं, हम उनको परिनिर्वाण प्राप्त कहते हैं, निर्वाण प्राप्त कहते हैं। ऐसे बाबा साहेब जो हमारे हैं नहीं, इतना डर सताता है इन ब्राह्मणवादियों को, मनुवादियों को, इतना डर सताता है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का कि उनकी स्टैचू का कभी उंगली तोड़ देंगे तो कभी हाथ तोड़ देंगे, कभी सर पे उनके कुल्हाड़ी बजाने का काम करते होंगे। मुझे लगता है इधर ये काम टीएमसी वाले भी करते होंगे। अगर हमारे समाज के लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाते होंगे तो टीएमसी के लोग भी तोड़ते होंगे। हमारे साथियों, समाज को जगाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। आखिर क्यों उनके झांसे में हम लोग पड़े हुए हैं? हम अपने भाइयों को, अपने भोले भाले समाज को, यदि हम इतने लोग बैठे हम जागरूक हैं तो क्यों उनके चंगुल से नहीं छुड़ा पा रहे हैं? बहन जी की एक बात फिर मैं कहना चाहूंगा। बहन जी ने अपने उसी किताब में लिखा है कि जिस देश में ब्राह्मणवाद होता है, जिस देश में ये मनुवाद होता है, उस देश में मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, साम्यवाद, समाजवाद सब जीरो हो जाता है। ये इतना खतरनाक है मनुवाद। ये मनुवाद जिस देश में होता है, ये जातिवाद होता है, वहाँ मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, साम्यवाद, समाजवाद सब शून्य हो जाता है, सबको निकल जाता है। तो बंगाल के भाइयों, मेरा ये कहना है, हमारी समस्या का निदान किसी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, किसी लेफ्ट में नहीं है, किसी माओ, किसी नक्सलाइट मूवमेंट में नहीं है। तो बहन जी ने कहा कि इस मनोवाद
करना पड़ेगा, गांव-गांव तक ले जाना पड़ेगा। इस अम्बेडकरवाद की फिलॉसफी के आधार पर हमें काम करना होगा सम्मानित साथियों। ये मैंने कुछ इतिहास की बात, कुछ मैंने आपके जज्बात की बात मैंने आपके बीच में किया है। सम्मानित साथियों, मैं थोड़ा सा समय लेकर के आपसे कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो देश में राजनीतिक हालात है, एक बात आप लोगों ने सुनी होगी पुराने लोगों के द्वारा, हमारे प्रधानियों के द्वारा, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, कि कांसीराम जी ने 1982 में किताब लिखा था। उस किताब का नाम था एन एरा ऑफ स्टूडेंट, चमचा युग। कांसीराम जी ने चमचा युग नाम की किताब लिखी थी और उस किताब में कोई 12-13 प्रकार के चमचों की बात बताई थी। ये किताब कब लिखी? 1982 में लिखी, 40 साल से ज्यादा हो गए। देखो भाई, कोई नीचे तो नहीं है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। साथियों, मैं बात कर रहा था कि 1982 में लिखी, 40 साल से ऊपर हो गए वो चमचायु नाथ की किताब लिखे हुए। 40 वर्षों में चमचों की वैरायटी बढ़ गई है। अब तो 12-13 नहीं होंगे, तो 25-30 हो गए होंगे, 50 हो गए होंगे। चमचों का प्रकार बढ़ गया। कैसे चमचों का प्रकार बढ़ गया? उस समय बाम सेप थी, बाम सेप के चमचे नहीं। अब तो बाम सेप तोड़ा 1986 में जाकर के। हमारी बाम सेप को, कांसीराम साहब की बाम सेप को तोड़ा, 5 लोगों ने मिलकर तोड़ा। ऑनलाइन वीडियो मिल जाएगा, स्पीच मिल जाएगा कांसीराम साहब का। 5 लोगों ने मिलकर राजीव गांधी से पैसा लेकर, चंद्र सिक्के लेकर, ये साहब का स्पीच है, और हमारी बाम सेप को तोड़ा उन्होंने, और जाके बाम सेप का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। वो बाम सेप डी.के. खापर्डे के नेतृत्व में तहत तोड़ा। तजिंदर सिंह झल्ली कोई थे पंजाब के, राम खोबरागड़े थे, कोई पाटिल जी थे, कोई कांबले जी थे। 5 लोगों ने हमारी बाम सेप के 2 टुकड़े किए। बाद में पटी नहीं, लोभ के आधार पे, लालच के आधार पे अगर कोई संगठन बनाता है तो चल नहीं पाता है, क्योंकि लालच और लोभ टकराएगा और फिर टुकड़े हो जाएंगे। फिर तजिंदर सिंह झिल्ली ने अलग कर लिया, राम खोबरागड़े ने अलग कर लिया, और खापर्डे जी ने अलग कर लिया। एक बाम सेप 3 बाम सेप हो गई। खापर्डे जी के चेला हुए बामन मेश्राम जी। मेश्राम जी पर एक कर्मचारी ने मुकदमा कर दिया, कोई गड़बड़ किया उन्होंने, फिर उसमें से पीढ़ी बोलकर अलग हो गए, उन्होंने अलग कर लिया। कहने का मतलब 10, 12, 15 प्रकार की बाम सेप वो चल रही है, और ये सारी बाम सेप काहे का भाषण देती है, किस बात का भाषण देती है? ये वैरायटी बढ़ गई ना। कांसीराम साहब ने 82 में जो 10-12 प्रकार की वैरायटी बताई थी, बाम सेप में ही 12-15 प्रकार की वैरायटी बढ़ गई। वो कोई मूवमेंट नहीं चलाते, उनका एक मूवमेंट है कि किसी तरीके से बीएसपी को रोकना, किसी तरीके से बहन जी को रोकना, एक ही उनका आंदोलन चल रहा है। इन चमचों का इलाज करना पड़ेगा, वर्तमान समय में इनका ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से कॉलोनी में आया, कौन से मोहल्ले में गया, कैसा भाषण दिया, क्या कैडर कैंप चला रहा है, कहां से चंदा वसूल रहा है, ये जो चंदा खोर आए हैं, इनका इलाज आपको करना पड़ेगा। समाज को सावधान करना पड़ेगा, ऐलान करना पड़ेगा। ये नकली बाम सेप वाले हैं, हमें असली वाली बाम सेप को मजबूत करना होगा। हमारी जो बाम सेप है असली वाली, जिसकी नेता बहन जी हैं, जानते हैं ना इस बात को कि अपने पास बाम सेप है। बाम सेप की लीडर बहन जी हैं। कैसे? कांसीराम साहब ने जब 2001 में कहा कि बहुजन आंदोलन का उत्तराधिकारी मैं मायावती को घोषित करता हूं, ये जब कांसीराम साहब ने कहा, तो कांसीराम साहब ने बाम सेप पहले बनाया था, और DS4 बनाया था, फिर BSP बनाया था। DS4 तो BSP बन गया था, लेकिन बाम सेप लगातार चल रहा था। तो कांसीराम साहब ने ये कहा था कि जो लोग उनके साथ जाना चाहें, जो डुप्लीकेट बाम सेप जिन्होंने बनाया वो जा सकते हैं, लेकिन जो लोग मेरे साथ आना चाहें, वो बाम सेप हमारे साथ आएगी, और वो बहुजन समाज पार्टी के साइडों के रूप में काम करेगी, वो बैकबोन के रूप में काम करेगी, वो हमारे BSP की जड़ बनकर के काम करेगी।
तो वो जो हमारी जड़ है, वो जो हमारी कॉन्सेप्ट है, वो पूरे देश में बनती है, बहन जी बनाती हैं और वो संचालित रहती है। तो कॉन्सेप्ट का लीडर जब साहब ने बीएसपी का लीडर बहन जी को बना दिया, तो कॉन्सेप्ट की भी लीडर कौन हुए? बहन जी हुई ना। तो बहन जी वाली जो हमारी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मजबूत करना होगा, असली वाली कॉन्सेप्ट को बनाना होगा। आपके कस्बे में, आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके ब्लॉक में जहां भी कर्मचारी मिलता हो, उस कर्मचारी को जोड़िए, कागज में उसका नाम नंबर नोट कीजिए, उसको बुलाइए, उसको बुला करके हमारा जो संगठन का फॉर्मेट है, जो भी अध्यक्ष जी ने बताया है कि एक जिले में 11 लोगों की कमेटी बनेगी कॉन्सेप्ट, असेंबली लेवल पर भी 11 लोगों की कमेटी बनेगी कॉन्सेप्ट की, उस कमेटी को बनाइए, वो कॉन्सेप्ट असली वाली कॉन्सेप्ट बनाइए। ये जब असली वाली कॉन्सेप्ट आप बनवाने में सहयोग करेंगे, आप बनाएंगे असली वाली कॉन्सेप्ट, तो जानते हैं नकली वाला अपने आप निकल जाएगा। जहां असली लोग पहुंचते हैं वहां नकली वाला अपने आप भाग जाता है, फिर रुकता नहीं है वो। दिल्ली में एक हमारे भाई साहब हैं, उदाहरण दे रहा हूं, तो वो लिपस्टिक, क्रीम और पाउडर ये मैन्युफैक्चर करते हैं, लेक्मे कंपनी का मैन्युफैक्चर करते हैं। अब लेक्मे कंपनी के तो वो है नहीं, चुपके से बनाते हैं। दिल्ली में एक सदर बाजार है जहां पे सारे माल बिकते हैं, ले जाते हैं गोदाम में, धीरे से गाड़ी में भर के सप्लाई दे जाते हैं। मैंने एक दिन भाई साहब से पूछा कि भाई साहब, ये लेक्मे कंपनी का माल आप चोरी चोरी बनाते हो डुप्लीकेट, और कहीं छापा पड़ गया, पकड़ में आ गए तो दुर्गति हो जाएगी, ऐसा काम क्यों करते हो, काहे करते हो? तो उन्होंने फिर बताया कि कभी नहीं पकड़ा जाएगा ये माल हमारा। हमने कहा कैसे? बोले वहाँ बड़े बड़े गोदाम हैं दिल्ली सदर बाजार में, ऐसे ऐसे गोदाम है जहाँ डुप्लीकेट माल ही स्टोर होता है, तो हम उधर सप्लाई दे देते हैं, पैसा मिल जाता है, और ये माल ऐसे एरिया में बिकता है, ऐसे जिले और डिस्ट्रिक्ट में जाके मिलता है जहां पर असली वाला लेक्मे नहीं पहुंच पाता है। महिलाएं टेलीविजन में एडवर्टाइज देखती हैं और ढूंढती रहती हैं कि कहीं लेक्मे का सामान मिल जाए, परचेज कर लें। तो ऐसे एरिया में, इस देश के ऐसे जिले में और प्रांत में जहां असली वाला लेक्मे नहीं पहुंच पाता है, वहां वो हमारा दुकानदार जो गोदाम का हेड है उधर सप्लाई करता है नकली वाले लेक्मे को, और महिलाएं पाती हैं फटाफट परचेज कर लेती हैं, क्योंकि उन्होंने असली वाला देखा नहीं। तो जब असली पहुंच जाएगा और एक बार असली का स्वाद मिल जाएगा, तो नकली का मार्केट अपने आप गायब हो जाएगा। तो ये जो नकली वाला कॉन्सेप्ट है, ये तब तक चल रहा है जब तक असली वाली कॉन्सेप्ट आप नहीं बना रहे। जब असली वाली कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दोगे आप, तो नकली वाला तुम दबा के धीरे से निकल लेगा, फिर रुकेगा नहीं वहां पर, क्योंकि उसको पता, जब स्पीच करोगे कि ये इसने कांसीराम साहब को धोखा दिया है, ये बहन जी के विरुद्ध काम करता है, ये कोई कॉन्सेप्ट असली वाला नहीं है, ये कोई आपको सत्ता दिलवाने के लिए काम नहीं करता है, ये पेट पालने के लिए काम करता है, ये चंदाखोरी करता है, ये लंबा लंबा भाषण देता है, और ये किसी काम का नहीं है, तो नकली वाला गायब हो जाएगा और असली वाला स्थापित हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि असली जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों को बनाना है, पीवीएफ का भी निर्माण करना है। नौजवानों में इतने सारे साथी बैठे हुए हो आप, लेकिन सम्मानित साथियों, इसमें जो 18 से 28 वाली उम्र होती है, शायद कोई एक आध होगा। 18 से 28 वाला कोई है? 28 साल से कम उम्र का एक भी नहीं, एक आदमी, एक नौजवान साथी है। आप दिखाए, फिर से दिखा दो, खड़े हो जाओ, दिखा दो, तो मैं नहीं हूं। ये एक आदमी है, ताली बजा दो। हम यहाँ पर लगभग 100 लोग इकट्ठा हुए और 100 में से एक आया है नौजवान। कैसे मूवमेंट चलेगा? कैसे बीएसपी बढ़ेगी? ये किसकी जिम्मेदारी है? आप जो पुराने लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप नई पीढ़ी को लेकर नहीं आओगे, यही नई पीढ़ी को वोटिंग वाले दिन बूथ पर मारपीट करती है, यही वोट डलवाती है। टीएमसी वाले जितना दंगा फसाद करते हैं, सब इसी उम्र वाले लोग हैं। जो खबरें आती हैं, दिल्ली में हम लोग रहते हैं, यूपी में रहते हैं, तो इधर की खबरें आती हैं, टीएमसी वालों ने ये कर दिया, वहां पर वो कर दिया, तो सब नई उम्र के लड़के होते हैं। नई उम्र के नौजवानों को लाना होगा, उनको तैयार करना होगा। बहन जी ने एक तरीका बताया है, अभी 18 मई को बुलाया था, वो बहन जी ने तरीका बताया है। खैर बहन जी का तरीका ज्यादा गंभीर है, आपको तो थोड़ा
और भी कुछ तरीका सोचना पड़ेगा। बहन जी ने जो तरीका बताया वो तो फिर कल्चर स्थापित करने के लिए कहा। बहन जी ने कहा, अपने पूरे जीवन का उदाहरण देकर समझाया बहन जी ने। बहन जी ने कहा कि आप लोग जब किसी शादी विवाह में जाते हो तो पूरी फैमिली लेके जाते हो, अपनी पत्नी भी लेके जाओगे, नौजवान बेटा बेटी भी लेकर जाओगे, साथ में सावा साली भी लेकर के जाओगे, पूरी फैमिली लेकर के जाओगे। जब शादी विवाह में जाओगे, पिकनिक मनाने जाओगे तो भी पूरा परिवार लेकर जाओगे आप। और जब कोई देवी माता जो होती है, इधर तो बहुत चलती है, दुर्गा मैया चलती है, इधर माँ दुर्गा चलती है कोलकाता में। तो जब आप बहन जी ने ऐसे व्यंग किया कि जब काली माता भूरी माता के यहाँ कुछ करने जाते हो तो भी पूरा परिवार लेकर जाते हो, लेकिन जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाते हो, परिनिर्वाण दिवस मनाते हो, और जब मेरी रैली होती है या पार्टी का कार्यक्रम होता है तो अकेले हाथ झुलाते हुए चले जाते हो, फिर पूरी फैमिली में लाते हो आप। तो आपका जो नौजवान बेटा है बेटी है उसको तो आप बताते नहीं हो कि हमारे संत गुरु महापुरुष हुए हैं, ये हमारा संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी पार्टी है, ये हमारी नेता है। तो जब अपने बच्चों को आप लाते नहीं हो, बताते नहीं हो, तो वो बच्चे तो स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे और वहाँ मनुवाद का मसाला मिल रहा है, वहाँ सरस्वती पूजा करवाया जा रहा है, नई नई जयंती पैदा होती, हनुमान जयंती शुरू हो गया है, अभी संतोषी मैया शुरू हो गई थी, तमाम प्रकार का आडंबर और पाखंड शुरू कर दिया जाता है। आप अपना वाला विचार दोगे नहीं तो दूसरा विचार कहीं से ले लेगा, क्योंकि ये जो नाम रूप की काया है इसका दो खुराक है। ये जो शरीर है इसका खुराक है, वो तो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, भोजन, लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भी कुछ खाता है। इसको चाहिए, इसको विचारधारा चाहिए, इसको इतिहास चाहिए, इसको धर्म चाहिए, इसको संस्कृति चाहिए। आप नहीं दोगे तो कहीं से भर लेगा इसमें, इसको खुराक चाहिए। इसलिए आपको अपना देना पड़ेगा, अपने महापुरुषों के बारे में बताना पड़ेगा, अपनी पार्टी, अपने नेता के बारे में बताना पड़ेगा। तो सम्मानित साथियों, कि नौजवानों को नहीं लाओगे, नहीं तैयार करोगे तो बात नहीं बनेगी। इस बात की परिपूर्णता के लिए तो बहन जी ने यह भी कहा है कि सभी पदों पे 50% नौजवान होना चाहिए। स्टेट लेवल की कमेटी हो, जोन लेवल की कमेटी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी हो, और चाहे विधानसभा और सेक्टर पोलिंग बूथ लेवल की कमेटी हो, 50% नौजवान रखने हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि अगर 4 साथी किसी कमेटी में चारों 55 से ऊपर वाले हो, 50 से ऊपर वाले हो, तो मेरा गर्वबद्ध निवेदन है कि 2 साथी पद मत लो चाहे, लेकिन 2 नए वालों को भर्ती करो, नए उम्र वालों को 2 को पोस्ट दे दो और उनको सिखाओ अपने साथ लगा करके। क्योंकि बहन जी ने 2016 में एक बात कहा था कि ये मिशन क्या हम लोग के साथ चला जाएगा या ये मिशन यहीं छोड़ करके जाना है। जाना तो सबको है, ये दुनिया छोड़कर सबको जाना है। ये विचारधारा, ये बहुजन मूवमेंट, ये हमारी हिस्ट्री, इसको हम क्या ले करके चले जाएंगे। तो बहन जी ने कहा कि नहीं, इसे हमें अपने साथ खत्म करके नहीं जाना है, अगली पीढ़ी को दे करके जाना है। तो उसी दिन बहन जी ने कंपल्सरी किया और अपने फॉर्मेट वाले नोट्स बना के दिया कि 50% नौजवानों को सारे पदों पर रखना है। समाज साथियों, तो साथियों, ये बहन जी के आदेश को हमें मानना होगा, हमें इंप्लीमेंट करना होगा, तब हमारी डिग्री बनेगी, तब हम लोग कहीं जीत हासिल कर पाएंगे। बाकी और भी तरीके कुछ हम लोग लोकल स्तर पे डेवलप करेंगे। जैसे हम छात्रों की मीटिंग कर सकते हैं, कहीं पर हम नौजवानों की मीटिंग कर सकते हैं, कहीं हम महिलाओं की मीटिंग कर सकते हैं। हमें मीटिंग करने में क्या बुराई है। बहन जी ने जो फॉर्मेट दिया है उसका उपयोग फॉर्मेट में करेंगे, लेकिन मीटिंग तो हम किसी भी कर सकते हैं। हम नौजवान बच्चों को जोड़ने के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवा सकते हैं, उनको भगवान बुद्ध बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब भेंट कर सकते हैं, उनको कोई प्रशस्ति पत्र दे सकते हैं। अगर हमारे कार्यकर्ता पैसा इकट्ठा करें तो किसी को 2000-4000 रुपया इनाम दे सकते हैं, किसी तेज तर्रार छात्र को। ये मैं कुछ तरीके डेवलप कर रहा हूँ कि युवाओं को, नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित कैसे करेंगे। आप लोग आप एग्जाम एक आयोजित कर लो किसी जिले में, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर प्रतियोगिता करके कर लो। आप बाबा साहेब की एक बुकलेट निकाल के 10-5 पन्ना छाप के जीवनी दे दो, बच्चों को बांट दो, अपने ही घरों के बच्चों को दे दो, 100 बच्चों को दे दो और कहो 100 को आपको परीक्षा देना पड़ेगा, देखें कौन कितना नंबर लेकर आता है। अम्बेडकराइट हो जाएगा, हमारे महापुरुषों को जान जाएगा, और उसी में से 3-4 बच्चे जो ज्यादा नंबर लेकर के आए उनको आप मंच पर बुला के, अगर पुरस्कार में देने के लिए पैसा नहीं है तो गुलदस्ता दे दो, उसको कोई किताब दे दो,
प्रोत्साहित हो जाएगा और इस बहुजन मूवमेंट में आगे बढ़ जाएगा। सम्मानित साथियों, हम लोग अगर बहुजन मूवमेंट को आगे लेकर के आना है तो कुछ मेथड अपने लेवल पर, लोकल लेवल पर डेवलप करके हमें आगे बढ़ना होगा। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने बामसेन के साथियों से कहा कि भाई कैडर तो बहुत होते रहे। अभी अध्यक्ष जी ने डेट बताया है आपको, 6 जुलाई को कैडर कैंप रखा गया। हम लोगों ने आगे 20 जुलाई को बामसेन का कैडर कैंप रखा है। 20 जुलाई को बामसेन का करेंगे, 6 जुलाई को बीएसपी के कार्यकर्ताओं का कैडर कैंप करेंगे। अब ये जिज्ञासा होगी कि कैडर कैंप तो खूब सुना है, बहुत लोग भाषण देकर गए हैं, बहुत सारे लोग कैडर देकर गए हैं। कैडर देना है, लेकिन सिर्फ उतना ही कैडर नहीं देना है जो कैडर 1984 में दिया गया था। 1984 वाला ही सिर्फ नहीं देना है, 1990 वाला ही सिर्फ नहीं देना है, 1995 वाला ही कैडर सिर्फ नहीं देना है, सन 2000 वाला ही कैडर नहीं देना है। कौन सा साल आ गया? 2025 आ गया। हमें 2025 वाला कैडर देना है। दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया और आप वहीं खड़े रहोगे, कैसे मूवमेंट बढ़ेगा? अब कहोगे 2025 वाला कैडर क्या होता है? बहन जी ने, साहब ने जो बात 1990 में बताई थी, क्या अभी 18 तारीख को बहन जी ने बुलाया था, क्या वही बात बताई है? हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में बहन जी बुलाती हैं और हमें 2 पेज 4 पेज नया लिखवाती है, नया बताती हैं। हम लोग उस नई बात को कह नहीं पाते हैं, नोटिस में नहीं ले पाते हैं। तो कैडर कौन सा देना है? अपडेटेड कैडर देना है। हमें अपडेटेड कैडर देना है, अब वाला कैडर देना है। पुरानी बात को लिंक लगाना है, लेकिन नया वाला कैडर देना है। इसलिए लगातार हम लोग कैडर चलाएंगे। इस कैडर के प्रति आप लोग ईगरनेस पैदा करो, उत्सुकता पैदा करो और कैडर में आए लोग और सीख करके लोगों को लोग सिखाना शुरू करें। अब अपडेटेड क्या हो गया भाई? आप कहोगे कि मैं इस्तेमाल नहीं करूं, तो देख रहे हो जमाना है ना इसका। पहले हम लोग के बचपन में, आज के 40 साल पहले, कोई दिल्ली और कोलकाता कमाता था, मुंबई कमाने जाता था गांव देहात से, तो कमाने जाता था और घर में दादा दादी जी की मौत हो जाती थी, नाना नानी की मौत हो जाती थी, तार भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे, अंतरदेशीय कार्ड होता था। कभी कभी तार तब मिलता था जब 13वीं क्रियाक्रम सब हो जाता था। ये संचार था। आज के 40 साल पहले, 35 साल पहले संचार के ये माध्यम थे। आज कैसा संचार का माध्यम है भाई? आपका कोई हितैषी उधर रहता हो और ये लगा रखे हैं कैमरा और यहीं से फेसबुक पर लाइव कर दे तो अमेरिका में बैठा हुआ मेरा जी का भाषण सुन ले। वीडियो कॉल करके दिखाएं तो दुबई में बैठा हुआ वो वीडियो कॉल करके सब सुन लेगा कि क्या चल रहा है आज नॉर्थ बंगाल में, सिलीगुड़ी में क्या चल रहा है। जमाना बदला कि नहीं बदला? और आप कहोगे कि नहीं हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब रखना पड़ेगा, इस टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी सीखने वाले नौजवानों को अपने साथ रखना पड़ेगा। हमें नहीं आता है, हम एक नौजवान लड़का रखेंगे, कहेंगे बेटा ये फोटो खींची थी, ये भाषण हुआ था, जरा डाल दे दो, जरा व्हाट्सएप पर भेज दे फला आदमी को। अरे और नहीं, अपने 20 रिश्तेदारों को ही भेज दीजिए, अपने 25 दोस्तों को ही भेज दीजिए कि आज सिलीगुड़ी ऑफिस में मीटिंग हुई है। इसको जब भेज देंगे तो यहाँ पर 100 को पता चला और अब आप लोग 20-20 भेजेंगे 100 आदमी, तो 20 को पता चल जाएगा, 2000 तक बात पहुंच जाएगी। और जब 2000 तक बात पहुंच जाएगी तो कुछ चेतना आ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, इस व्हाट्सएप का उपयोग करना है, इस फेसबुक का उपयोग करना है। हमारी बहन जी ट्विटर पर है, ट्विटर जो एक्स कहलाता है, एक्स पर है बहन जी। फोन आता है दिल्ली से और लखनऊ से, बहन जी ट्वीट करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और हमारे पास फोन आता है और फोन में बताया जाता है कि बहन जी ने 2 ट्वीट किया है, इसको सारे कार्यकर्ताओं को बताइए और इसको हाईलाइट कीजिए। वो जो हाईलाइट करने का कंसेप्ट है वो हमारे कार्यकर्ता जानते ही नहीं कि हाईलाइट कहना किसको कह रहे हैं। मेवालाल जी बोलेंगे हाईलाइट करवा दीजिए। भाई सनत साधु जी, हाईलाइट क्या मतलब होता है? हाईलाइट का ऑप्शन है एक्स वाले पे। हम कैसे हाईलाइट करते हैं कि स्क्रीनशॉट लेते हैं या मेवालाल जी भेज देते हैं केंद्रीय कार्यालय से और स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। हम समझते हमने हाईलाइट कर दिया। ये हाईलाइट नहीं हुआ, उसी एक्स पर हाईलाइट का ऑप्शन है,
रीपोस्ट का ऑप्शन है, रीट्वीट का ऑप्शन है, तो उस पर जाके उसको लाइक करना है और लाइक करने के बाद रीपोस्ट कर देना है। और जब रीपोस्ट होगा तो जितने आपके फॉलो होंगे उस पर हाईलाइट हो जाएगा। ये हुई ना टेक्नोलॉजी। तो जिस टेक्नोलॉजी को हमारी लीडर, हमारी बहन जी इस्तेमाल कर रही हैं, यदि हम उससे परहेज करेंगे, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कैसे बहन जी को हाईलाइट करेंगे? आकाश आनंद जी को कैसे हाईलाइट करेंगे? इसके नेगेटिव पहलुओं का ध्यान रखना होगा, लेकिन जो पॉजिटिव जितना समझ में आए उस पॉजिटिव दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा, अपडेट होना होगा, अपडेटेड कैडर देना होगा, नौजवानों को जोड़ना होगा, हमें मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा, बड़े पैमाने पर हमें आगे बढ़ करके काम करना होगा। ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। इधर एक साथी पहले ये प्रणव होकर इधर रहे हैं, अभी माननीय सांसद जी आए 1 जून को, तो उन्होंने फिर से कहा कि इनको फिर से लगाया गया है। तो इधर ये ऑफिस में रहे हैं, अपने पास 2 ऑफिस है, एक कोलकाता में है, एक यहाँ है। ये यहाँ पर पहले ज़्यादा रहे, तो मेरा ये निर्देश है कि इधर ये अभी ज़्यादा रहेंगे इस कार्यालय पे, और जब उधर की मीटिंग्स लगेगी हम लोगों की, तो ये उधर फिर बाई ट्रेन चले जाएंगे और वहाँ जहाँ मूव करना होगा, जहाँ इनकी जिम्मेवारी देंगे, वहाँ ये मूव कर लेंगे। मतलब जैसे 4 दिन खाली हो गया रहने के लिए, और बैठ करके कुछ लिखाई पढ़ाई करना है, फोन पर बात करना है, तो उससे अच्छा है कि अध्यक्ष जी और हम दोनों लोग उधर ऑफिस पर रहते हैं, तो ये इधर ऑफिस पर रुक जाया करेंगे। और इधर जो है अभी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, चूंकि एक जोन में लगे हुए थे, तो उधर बिहार में भी, झारखंड, कई सारे राज्य में ऐसे बहन जी ने वाइस प्रेसिडेंट को पहले एक जोन में लगाने के लिए बोला था, लेकिन फिर हम लोगों ने बहन जी से रिक्वेस्ट करके कई सारे राज्यों में हमने कहा कि लीडरशिप बढ़ाना है, सिखाना तो पड़ेगा ना किसी को, कोई परमानेंट तो रहने के लिए नहीं आया है, आप लोगों में से किसी पर तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो 1-2 लोगों पर प्रयोग करके देखते हैं लीडरशिप के लिए, फिर आगे आप लोगों में से 2-4 को और उठाएंगे, उन पर प्रयोग करेंगे। आखिर हमें एक ही लीडर नहीं चाहिए, हमें किसी क्षेत्र में 10 लीडर चाहिए, हर जिले में 10 लोग चाहिए, हर असेंबली में 10 लोग चाहिए, तो ये बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर ये जो उपाध्यक्ष हैं सिकंदर जी, तो ये भी जो है आप लोगों के बीच में मूव करेंगे। जैसे मैं और अध्यक्ष जी अगर एक डायरेक्शन में हम लोग चले गए, तो कहीं कहीं प्रणव हत्थर और ये लोग एक डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो हमारा 2 डायरेक्शन में काम हो जाएगा। और अगर चारों लोग हम एक ही जगह जाते हैं, तो एक ही मीटिंग हमारी हो पाएगी। तो इस प्रकार से ये इधर ज्यादा समय देंगे, इधर रुकेंगे, और जरूरत पड़ने पर ये उधर भी चले जाएंगे प्रणव हत्थर जी, और ये सिकंदर जी ये भी स्टेट लेवल पे ये मूव करेंगे। ऐसे 5 सेट की जो 20 तारीख को मीटिंग है, चूंकि हम लोग और भी काम में सब बिजी रहेंगे, तो हमने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि भाई आप अपनी जो है उस पर जिले में घूम करके और 5 सेट के लोग जहाँ जहाँ मिले उनको आप जोड़िए और ले करके आइए, ताकि आप भी 8 जिले के लोग यहाँ पर हैं, उसमें जो 5 सेट के साथी हैं उसको भेजिए 20 तारीख को। और 8 जिले का जो कन्वीनर है, कम से कम बनाना तो 11 है, 10 उसके सहायक कन्वीनर बनाने, असिस्टेंट कन्वीनर बनाने हैं, और एक कन्वीनर बनाना है। तो अभी असिस्टेंट वाला अगर ना बन सके तो कम से कम एक कन्वीनर तो आप लोग बना दें। तो हमारे तीनों जो जोन इंचार्ज हैं, आप तीनों लोगों से कहना है कि 8 जिले में आप तो 8 आदमी उधर 20 जुलाई को लेकर के पहुंचिए। आप स्वयं भी पहुंचिए, और अगर किसी कारण से एब्सेंट हो जाते हैं तो भेजिए जरूर आप लोग। हम बीएसपी और बाम से दोनों विंग को मजबूत करेंगे, और फिर बहुजन वॉलंटियर फोर्स को भी हम लोग तैयार करके हम इधर जो हमारा अभी तक का काम है, प्रयास यही होना चाहिए कि ये काम हम लोग कई गुना बढ़ाएंगे। ऐसा आह्वान करते हुए, ऐसा रिक्वेस्ट और निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। आपने ध्यान से मेरी बात को सुना है, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और अपनी बात को रोकता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। बहुजन न्यूज़ इंडिया, শিলিগুড়ি।